کہ چیئرمین تحریک انصاف کو آئینی طریقے سے حکومت سے ہٹایا گیا۔ آئین پاکستان میں حکومت بنانے اور ہٹانے کا طریقہ کار موجود ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سازش سے متعلق بیانیے پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ امریکی سازش کے بیانیے سے خود پیچھے ہٹ گئے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ترک میڈیا کو انٹرویو۔ انتخابات سے متعلق بولے کہ ہم انتخابی عمل میں داخل ہونے جا رہے ہیں، یقین دلاتا ہوں کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے۔ مزید کہا کہ نگران حکومت کسی سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت نہیں کرے گی۔ ملک میں پرامن احتجاج کی ہر سیاسی جماعت کو اجازت ہے، مگر کسی کو پرتشدد سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مزید کہا فوج ایک منظم ادارہ ہے، مختلف مواقعوں پر مدد لینا پڑتی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ترک میڈیا کو دیے انٹرویو میں ملکی اور غیر ملکی معاملات پر کھل کر بات کی اور تیکھے سوالوں کا جواب بھی دیا۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو آئینی طریقے سے حکومت سے الگ کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی امریکی سازش کے بیانیے سے خود پیچھے ہٹے۔ That was the only way and time when he was ousted constitutionally. There was no military coup. So the constitution provided the bringing in, it does explain and the procedure how to bring in a government or how to oust it. So that was all constitutional and lawful. نگران وزیر اعظم نے عام انتخابات کے حوالے سے کہا کہ ہم انتخابی عمل میں داخل ہونے جا رہے ہیں، یقین دلاتا ہوں کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے۔ حکومت کسی سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت نہیں کرے گی۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے، مگر پرتشدد سرگرمیوں کی اجازت نہیں۔ ایک موقع پر کہا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے، مختلف مواقعوں پر مدد لینا پڑتی ہے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ اور اتحادی 20 سال افغانستان میں رہے، $2 کھرب جھونک موجود مرکزی اتھارٹی قائم نہ کر سکے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے افغانستان میں ٹھکانے ہیں۔ افغانستان حکومت اپنی سرزمین ان گروہوں کو استعمال نہ کرنے دے۔ نگران وزیر اعظم کے ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے انٹرویو میں ریمارکس کو غلط رپورٹ کیا گیا۔ پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتیں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہیں۔ وزارت اطلاعات نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ تاثر غلط دیا گیا کہ کسی مخصوص شخص کو عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نگران وزیر اعظم تجویز کر رہے تھے کہ انتخابات میں حصہ لینا ایک حق ہے، لیکن جرائم پر سزا قانونی طور پر جائز ہے۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ انٹرویو کے ایک حصے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ نگران وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ قانون سب سے اہم ہے، چاہے چیئرمین پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور سیاستدان۔ ملکی قوانین کی خلاف ورزی پر قانون لاگو ہوگا۔ نگران وزیر اعظم نے کہا تھا کہ شفاف انتخابات چیئرمین پی ٹی آئی یا ان کی پارٹی کے سینکڑوں ارکان کے بغیر ہو سکتے ہیں جو توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر جیلوں میں ہیں۔ انوار الحق کاکڑ نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں سیاسی عمل چلائیں گے وہ انتخابات میں حصہ لیں گے۔ پی ٹی آئی یا پارٹی کے کسی بھی رہنما کے الیکشن لڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں قید رکھنے کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل منتقل ہونے سے انکار کر دیا۔ اٹک جیل میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو بتایا کہ وہ اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، اب اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتے۔ خصوصی عدالت نے پی ٹی آئی چیئرمین اور شاہ محمود قریشی کے 14 روزہ ریمانڈ میں توسیع کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل رکھنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم، چیئرمین پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل منتقل ہونے سے انکار۔ سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں جج ذوالقرنین حسنات نے کی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ دوران سماعت چیئرمین تحریک انصاف نے عدالت کو بتایا ہے کہ وہ اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو چکے، اب وہ اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتے۔ وکلا سے جیل منتقلی کی درخواست واپس لینے کے لیے کہیں گے۔ پی ٹی آئی کے وکلا نے بھی چیئرمین تحریک انصاف کے بیان کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹرائل سیکرٹ ہونا چاہیے۔ او بھائی کس چیز کا سیکرٹ ہونا چاہیے؟ ٹرائل ساری قوم کو دیکھنا چاہیے۔ آؤ دیکھو کہ کس چیز پر آپ کا جو ہے ایک پاپولر ترین جو پرائم منسٹر تھا اس کو کس مقدمے میں اندر رکھا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے کیس کی جیل میں سماعت پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ امپورٹنٹ اعتراض ہے وہ ان پروسیڈنگز کے اوپر ہے کہ کوئی اس کا جواز نہیں بنتا کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی پروسیڈنگز اس جیل میں کی پروسیڈنگز کی جائیں۔ کسی بھی ملزم کو عدالت کے سامنے لایا جاتا ہے، نہ کہ عدالت خود چل کے کورٹ آ جائے اور ادھر آ کے اپنی کورٹ جیل میں لگائے۔ تو ہم ان جیل پروسیڈنگز کو ان کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں
और इनको हम डिसअप्रूव भी करते हैं। साइफर केस में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त कोर्ट में समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत से कबल बड़ी पेशरफ्त। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी। मुतफरक दरख्वास्त में अदालत से नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। उधर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा कि वकील अमानुल्लाह कंजाई निगरान सूबाई वजीर बन चुके हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत से दरख्वास्त है कि केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में अहम पेशरफ। आईबी की जानिब से केस वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त गुजार शेख रशीद के वकील अमानुल्लाह कनरानी की भी मुकदमा मुलतवी करने की इस्तदा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस वापस लेने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर फवाद असदुल्ला खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर मुतफर्रिक दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फैजाबाद धरना नजरसानी केस 28 सितम्बर को समाअत के लिए मुकर्रर है। आईबी नजरसानी दरखास्त का दिफा नहीं करना चाहती, हम अपनी नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। दूसरी जानिब दरखास्त गुजार शेख रशीद अहमद के वकील अमानुल्लाह कनरानी ने भी मुकदमा मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। एडवोकेट अमानुल्लाह कनरानी अब बलूचिस्तान के निगरान वजीर कानून बन चुके हैं। दायर दरखास्त में कहा गया कि अमानुल्लाह कनरानी सुप्रीम कोर्ट में शेख रशीद के वकील की हैसियत से पेश नहीं हो सकते, जबकि दरखास्त गुजार शेख रशीद जेल में हैं और उनसे राब्ता नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। जवाब में कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोया से। इकराम, बताइए क्या जवाब में मजीद बताया गया? देखें, गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट था कि तमाम वकला जो हैं वो अपने जवाबात जो हैं वो जमा कराएं। इस हवाले से सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है, जिसमें मौके इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा नियाजुल्लाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में अपना जवाब जमा कराया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जबकि कानून जो है वो अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। इस हवाले से पार्लियामेंट ने कानून साजी के आईनी इख्तियार की खिलाफ वर्जी की है। जबकि जवाब में ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर तजावीज़ जो दी गई हैं उस हवाले से अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिका है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को गैर आईनी करार ठीक है, जवाबात जमा कराने का सिलसिला जारी है। इकराम, आपका शुक्रिया। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 अक्टूबर तक तौसी कर दी। गिरफ्तारी से पहले बुशरा बीबी को आगाह किया जा सकता है या नहीं, इस नुक्ते पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए गए। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि इनसे बयान ले लेते हैं कि ये बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर मेरिट पर दरख्वास्त जमानत खारिज हो जाए तो क्या हम गिरफ्तार करेंगे। वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि गिरफ्तारी से कबल बुशरा बीबी को आगाह किया जाए कि मैं इस नुक्ते पर अदालत की मुआवनत करूंगा, अभी केस के मेरिट पर दलाइल नहीं दूंगा। मुनासिब तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनिस सलाही के नाकाबिल जमानत वारंट्स गिरफ्तारी जारी कर दिए। परवेज इलाही के साहिबजादे को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई अगली समाअत तक मुलतवी। चेयरमैन नैब ने मोनिस सलाही के 11 अगस्त को वारंट गिरफ्तारी जारी किए। वो जानबूझकर रूपोश हैं, इश्तिहारी करार दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत से इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में 2 कमसिन बच्चियों की हवालगी का केस। अदालत ने दोनों बच्चियों को मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं हैं। सिर्फ दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान नहीं होता, अमल भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बच्चियों की हवालगी का केस चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया कि बच्चियों का बाप इतवार के रोज सुबह 10 से 5 बजे तक बच्चियों से मुलाकात कर सकेगा। वालिद की जानिब से अदालती हुक्म दूली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। बच्चियों के वालिद के वकील का कहना था कि बच्चियां वालिद के पास होनी चाहिए क्योंकि माँ रात की नौकरी करती है, माँ के पास बच्चियों की देखभाल का वक्त ही नहीं होता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वकील साहब, शरीयत के मुताबिक बच्चे माँ के पास रहते हैं, हम सिर्फ
नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं हैं। सिर्फ दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान नहीं होता, अमल भी होना चाहिए। नमाज, रोजा और हज करना काफी नहीं, इंसानियत और इखलाक भी लाजिम है। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि तलाक नहीं हुई वालिदैन की आपस की नाराजगी बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर देगी। बच्चों के वालिद ने बताया कि उसने पसंद की शादी की तो जस्टिस काजी फायज ईसा बोले खुद मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं, फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वालिदैन की रजामंदी से केस निपटा दिया। फैसलाबाद में कस्टम इंटेलिजेंस ने टोबा टेक्सिंग में कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम पेड जोगर्स से भरा कंटेनर पकड़ लिया है। कस्टम हुकाम के मुताबिक पकड़े गए जोगर्स की मालियत 29 करोड़ 20 लाख रुपए है और कंटेनर में मारूफ ब्रांड्स के जॉगर्स स्मगल किए जा रहे थे। अब्दुल सबूर बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी अब्दुल सबूर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में कस्टम कार्रवाई की गई है और गोजरा के करीब टोबा टेक्सिंग से जो है कंटेनर्स पकड़े गए हैं। यहाँ पर नॉन कस्टम जो सामान था वो पकड़ा गया है। दोनों कंटेनर्स में मारूफ ब्रांड के जो जूते थे वो छुपाए गए थे। कस्टम हुकाम के मुताबिक 29 करोड़ से जायद मालियत का ये सामान है, जिस पर 14 करोड़ रुपए के करीब जो है वो कस्टम ड्यूटी बनती थी, जो कि मालकान की जानिब से अदा नहीं की गई थी। कस्टम हुकाम ने कार्रवाई करते हुए बहुत शुक्रिया अब्दुल सबूर। लाहौर में आंखों की बीमारी आशूबे चश्म की अद्वियात की किल्लत, शहर के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से अद्वियात मिल नहीं रही हैं। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेडिकल स्टोर्स मरीजों को मुतबादल फार्मूले की अद्वियात देने लगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्लैक में आशूबे चश्म की अद्वियात फराहम कर रहे हैं। जुल्करनैन राना की रिपोर्ट। पंजाब में अशूबे चश्म कंट्रोल से बाहर, लाहौर में अशूबे चश्म के मर्ज में शिद्दत, अद्वियात की भी किल्लत हो गई। अशूबे चश्म से मुतासरा मरीजों की अद्वियात मेडिकल स्टोर से गायब। मरीज डॉक्टर की तजवीज करदा अद्वियात खरीदने से महरूम। मेडिकल स्टोर मुतबादिल फार्मूला, ड्रॉप्स और मेडिसिन देने लगे। मरीजों का कहना है अद्वियात ना मिलने पर घरेलू टोटकों पर इन्हिसार कर रहे हैं। आंखों के दर्द की सूरत में कोई दवाई मार्केट से मिल नहीं रही। इसी तरह बहुत मुश्किल हो रही है। कहते हैं ड्रॉप्स नहीं मिल रहे हैं तो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो हमें जब कंपनीज नहीं देती तो फिर आगे कस्टमर को भी नहीं मिलता और फार्मेसी से भी नहीं मिलता। दुकानदारों का कहना है जब भी कोई वबा आती है डिस्ट्रीब्यूटर्स अद्वियात शॉर्ट करके महंगे दामों देते हैं। खुदा का खौफ खाएं, ये गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है। अल्लाह का बंदो, जब कुदरत के तौर पे हमारे ऊपर आफत आती है ना, ऊपर से ये डिस्ट्रीब्यूटर और ये कंपनी वाले माफिया मिलके हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। मरीजों का कहना है महकमा सेहत की जानिब से अद्वियात को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इकदाम जरूरत है। कैमरामैन तारक महमूद के साथ जुल्करनैन राना, GNN लाहौर। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज पाकिस्तान पहुंच गईं। मरियम नवाज बरास्ता दुबई लंदन से पाकिस्तान वापस पहुंची हैं। मरियम नवाज ने लंदन में कायद नून लीग नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक अहम इजलासों में शिरकत की। लाहौर एयरपोर्ट पर लीगी कारकुनान की जानिब से मरियम नवाज का इस्तकबाल किया गया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि नवाज शरीफ के हवाले से ये इतलात हैं कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं।